आइकन का बटन अवश्य दबाएं। चैनल में विज्ञापन व न्यूज हेतु संपर्क करें। यूनियन बैंक ऑफिसर्स स्टाफ एसोसिएशन का 7वां त्रैवार्षिक अधिवेशन कार्यक्रम हुआ। अभिजीत राय सचिव लखनऊ इकाई ने कार्यक्रम संबंधित जानकारी दी। The willful defaulters NPA was 23,000 crores as on 2012 March. Do you know what is the figure of willful defaulters bad loan today? It has reached 10 times, 2.40 lakh crores or NPAs from the willful defaulters. You know what is exactly willful defaulters? Willful defaulters means willfully not paying, having the capacity to pay, having the business is running, they are not able to pay. Do you know, out of this 2.34 lakh crores of willful defaulters, more than 58% contributes from the corporate loans. Do you know what is the contribution by the housing loan defaulters? It is hardly 1%. Give loan to the housing, give loan to the education, construct hospitals, construct schools. There will be a mixed economy. Poverty alleviation can be ensured. That is why we are again and again telling we have to be very careful in those areas. We are proud to be part of Union Bank of India. I need to address, we are really proud to be part of Union Bank of India. Not for that it gives us salary. No. In the last 4 or 5 decades, if you see, there was a continuously seeming changes across Union Bank of India, may it be digital, may it be of any credit product, or may it be of the processing of loans or whatever you call it as. We were second to none when compared to the other public sector banks. We are trying to contest with Canara Bank and Punjab. संभव है। लास्ट डेट में आपको रिकवरी करना है, टेक्निकल मिस्टेक है जो अपग्रेडेशन करना है, स्टॉक स्टेटमेंट नहीं आया है उसको आप अपग्रेड करना है, उसको स्टैंडर्ड करना है। I would only like to place a small submission in front of you. Management should not make it the other way. The core purpose of the bank employees or the banking is nothing but accepting of deposit for the purpose of lending. I feel we are deviating from the bank subject and we are concentrating on other third-party products. We are not totally against third-party products, but by doing third-party products, I mean to say your CASA is coming down. We are trying to take out money from their CASA only. It's not about publics are bringing or customers are bringing money from outside. It is all the money which is available in your SBR CD. We are trying to convert it into the third-party product. And shall I tell you one thing? The companies which are being engaged, they are all taking the entire data of our customers and they are going to utilize all those for their financial resources. Ultimately, at the end of the day, we are going to lose. सही बात। जब केंद्र सरकार पब्लिक सेक्टर बैंक्स को प्राइवेटाइज करने की बात कर रही है, यदि पब्लिक सेक्टर बैंक्स का निजीकरण किया जाता है इस देश के अंदर, तो इसका नुकसान सिर्फ पब्लिक सेक्टर बैंक एम्प्लॉयज़ को ही नहीं होने वाला है। इस देश की जनता जिसको पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने आज तक पोषित फलित किया है, जब आप ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक में खाता खुलवाने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर मिनिमम बैलेंस की रिक्वायरमेंट 15,000 25,000 होती है। वहाँ पर गरीब आदमी को तो छोड़िए, आपके हमारे जैसे लोग भी अपना खाता मेंटेन नहीं कर पाएंगे। ये बात आपको समझनी होगी, लोगों तक पहुँचानी होगी। संगठन अपने स्तर पे संघर्ष कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। जंतर मंतर पे भी हमारा धरना प्रदर्शन हुआ था 21 तारीख को, 23 तारीख को भी हमारा धरना प्रदर्शन जंतर मंतर पर हुआ इसके विरोध में। आपको ये बात समझना होगा कि ये जो लड़ाई है ये सिर्फ बैंक के अधिकारियों और कर्मचारियों की नहीं है, ये लड़ाई इस देश की आम जनता की भी है। क्योंकि जब कोरोना आया तो पब्लिक सेक्टर बैंक ही खोल के सबको पैसा दिए, 2-2 हज़ार रुपये प्रधानमंत्री ने दिए, पब्लिक सेक्टर बैंक ने दिए, लाइन लगा कर दिए। किसान बीमा की कोई निधि आती है, योजना की कुछ भी आती है, पब्लिक सेक्टर बैंक पैसा देते हैं। ये भी आपको समझना होगा। 10,000 रुपये PM स्वनिधि योजना ने पब्लिक सेक्टर बैंक ने दिए। प्रधानमंत्री जनधन योजना में, जैसा कि अभी हमारे ऑल इंडिया महासचिव गणेशन जी ने बताया, पब्लिक सेक्टर बैंक ने 44 करोड़ अकाउंट खोले। आप सभी इससे वाकिफ हैं, छुपा नहीं है किसी से।
प्रधानमंत्री जी ने, फाइनेंस मिनिस्टर ने पार्लियामेंट के पटल पे ये बात रखी है, बोला है कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने बहुत अच्छा काम किया। 2 लाख करोड़ रुपए के करीब हम लोगों ने डिपॉजिट उस खाते में डाल दिया। प्रधानमंत्री जी की जितनी योजनाएं हैं, सरकार की जितनी योजनाएं हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक सब करते हैं। जब हम ये सब काम करते हैं तो हम इसको वित्तीय समावेशन के तहत करते हैं। वित्तीय समावेशन में हम आर्थिक स्थिति नहीं देखते हैं। अगर आप देखेंगे पब्लिक सेक्टर बैंक कहीं गांव में ब्रांच खोल के बैठा हुआ है, पहाड़ के ऊपर कहीं ब्रांच खोल के बैठा हुआ है। क्या आपको लगता है कोई ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक जाके गांव में ब्रांच खोलेगा? क्या आपने देखी है ऐसी कोई शाखा? तो मैं आप लोगों के माध्यम से ये निवेदन करना चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग इस बात को आगे बढ़ाएं कि यदि पब्लिक सेक्टर बैंक आज संघर्षरत है तो आपके भी समर्थन की उनको आवश्यकता है। इसमें देश की जनता का हित भी निहित है। अधिवेशन में किन किन बातों पर चर्चा हुई? देखिए, अधिवेशन में अभी हमारे जो भारतीय स्तर के नेता हैं, जिन्होंने कि जो हमारा बैंकर्स का जो सेटलमेंट होता है सरकार के साथ, उसमें हस्ताक्षर किया हुआ है, कॉमरेड DS गणेशन हमारे ऑल इंडिया के महासचिव हैं और सचिव हैं ऑल इंडिया बैंकर्स ऑफिसर्स एसोसिएशन के। वो अभी सम्मेलन में जो एड्रेस कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि क्या क्या खतरे हमारे दरवाजे पे खड़े हुए हैं। प्राइवेटाइजेशन यदि होता है या फिर यदि पब्लिक सेक्टर बैंक्स के साथ ऐसा होगा तो उसके क्या को असर पड़ने वाले हैं, क्या उसके कुप्रभाव होंगे। दूसरा, क्योंकि हमारा जो संगठन है वो हमेशा जनता के हितों के लिए अग्रसर रहता है। कभी कहीं पे बाढ़ आती है, कभी कहीं पे सूखा पड़ता है, ऐसी कोई भी कैलामिटी या कोई भी चीज़ होता है, हमारा संगठन वहाँ पर काम करता है। आज हमने गणेशन जी को यहाँ पे इनवाइट किया है लखनऊ को लोगों को एड्रेस करने के लिए। लखनऊ एक महत्वपूर्ण प्लेस है। हमारी ये इच्छा है कि लखनऊ में हमारे ऑफिसर्स जो है, हमारा मैसेज जो है उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की गांव-गांव तक लेके जाएंगे। हमारे सभी ब्रांचेस में हमारा मैसेज पहुंचेगा। हमारा जो ये अधिवेशन है इसको हमने फेसबुक पे भी लाइव ब्रॉडकास्ट करवा रहे हैं। हमारे यहाँ पे हमारे संगठन में पूर्णतः पारदर्शिता रखी जाती है। आपने ये बात देखी भी होगी। हमारी ये इच्छा है कि लोग जो हैं डिसिप्लिन के साथ बैंक के अंदर काम करें। गणेशन जी ने अभी हमारे बोला कि यदि पब्लिक सेक्टर बैंक्स के लोगों को ईमानदारी के साथ है ना काम करना है, तो जनता की सेवा करनी है, यही हमारा ड्यूटी है और हम अपने दायित्वों के प्रति सजग हैं और हम उसको आगे लेके जाएंगे। इस अधिवेशन के माध्यम से हम अपने लोगों को जुझारूता और ये हम उनको मैसेज पास करेंगे कि वो लोग इसके लिए आगे बढ़ें, आगे काम करें। जी हाँ जी, देखिए हमारा जो है त्रिवार्षिक अधिवेशन जब होता है तो इसमें हमारी जो स्टेट बॉडी है जिसके अंदर की उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड दोनों आते हैं, उसका चुनाव होता है। मैं पिछले जो हमारा अधिवेशन हुआ था उसमें मुझे महासचिव चुना गया था। अब आज यहाँ पर जो है हमारे जो लोग हैं डेलीगेट्स पूरे उत्तर प्रदेश उत्तराखंड से आए हुए हैं, वो निर्वाचित करेंगे जो भी आगामी बॉडी होगी। आज हमारी पुरानी बॉडी का जो समय है वो आज ख़त्म हो रहा है, इसीलिए हम यहाँ पे अपना रिपोर्ट कार्ड देने आए हैं। मैं जनरल सेक्रेटरी